سب سے زیادہ ہاہاکار جو مچا ہوا ہے اور ہنگامہ جو دنیا کے اندر مچا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم بچے اور مسلم بچیاں اسلام سے بیزار ہو کر دین سے دور جا رہے ہیں۔ بعض ایسے بدبختی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی دہریت قبول کر رہا ہے، کوئی عیسائیت قبول کر رہا ہے، کوئی معاذ اللہ کوئی اور مذہب کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کے پاس علم دین کا نہ ہونا یہ سب سے بڑی ارتداد کی، گمراہی کی، کفر و شرک کی سب کی جڑ اس وقت علم دین کا نہ ہونا ہے۔ اور جن کے پاس علم دین ہے تو علم بھی ان کے پاس علم القرآن کا ظاہری علم ہے، لیکن اس کی روح جو ہے علم القرآن کی وہ اس تک نہیں پہنچ سکے، اور قرآن کی روح تک وہی پہنچے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کو نہ چھوئے گا مگر پاک۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو نہ چھوئے گا مگر پاک۔ تو کون اس سے یہ مسئلہ تو نکل گیا ظاہری طور پہ کہ بے وضو نہ چھوئے گا، لیکن ایک اشارہ اس کا اس طرف بھی ہے کہ جب تک کسی کا دل گناہوں سے پاک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ قرآن کی اصل تک نہیں پہنچ سکے گا اور علم کی اصل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور یاد رکھنا، جو قرآن کی اصل تک پہنچ کر واقعی علم والا ہو جائے پھر اللہ اس کے پیروں میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ علم والا اگر کسی قبرستان سے گزر جائے تو 40 دن کے لیے اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا علم رکھنے والے کی برکت ہے۔ تو اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اب ایمان بچانے کا ہے، اب عقیدہ بچانے کا ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے۔ معاذ اللہ اسلام دشمن طاقتیں کوئی پیسہ دے کر، کوئی دولت دکھا کر، کوئی گھر دے کر، کوئی شادی کا لالچ دے کر ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے پر جب وہ شبخو مارنا چاہتے ہیں، ایسے وقت میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اٹھتی ہوئی اس ارتداد کی لہر کے سر کو کچل دیا جائے، اور اس کے لیے سب سے بڑی کاوش یہ ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کریں، اس لیے کہ جب علم ہوگا تو بچوں کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہوگا، جب علم ہوگا تو بچیوں کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ بڑا مشہور سا واقعہ ہے، آج عبادت پر سب کی توجہ ہے، علم پر کسی کی توجہ نہیں ہے، یا علم پر توجہ کم ہے، اور جہاں علم ہے وہاں بھی سطحی علم ہے، علم کی گہرائی اور گہرائی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا علم حاصل کیا جاتا ہے جس سے پیٹ کی پرورش ہو سکے۔ اے کاش علم اتنا حاصل کرنے کی بجائے کہ جو پیٹ کو پال سکے، علم اتنا حاصل کیا جاتا جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکے تو کتنا بڑا کام ہوتا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک مشہور سا واقعہ بار بار مدارس کے جلسوں میں پیش کیا جاتا ہے جو علم کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شیطان کا تخت جو ہے وہ دریا پر لگا ہوا ہے، اور شیطان روزانہ کی کارکردگی کی طرح آج بھی اپنے شاگردوں سے کارکردگی پوچھتا ہے، اور پوچھنے کے بعد کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ایک شیطان جو شمار و قطار میں نہ تھا اس نے کہا کہ میں نے ایک طالب علم کو جو علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا تھا میں نے روک دیا۔ اللہ اکبر، اے خاتون جنت کی کنیزوں توجہ سے سننا، اس شیطان نے کیا کہا کہ میں نے علم سیکھنے والے بچے کو علم گاہ درس گاہ جانے سے روک دیا۔ شیطان نے اچھل کر اس کو سینے سے لگا کر جو ہے وہ شاباشی دی تو دوسرے شیاطین، ظاہر سی بات ہے وہ تو بدبخت ہی تھے شیاطین، وہ لوگوں کے دلوں میں حسد ڈالتے تو ان کے دل میں حسد کیوں نہ ہوتا، لوگوں کے دلوں میں بغض ڈالتے ان کے دلوں میں بغض کیوں نہ ہوتا۔ تو انہوں نے بڑے شیطان سے کہا آقا اس نے اتنا چھوٹا سا کام کیا اور اس کو اتنی بڑی شاباشی دی گئی۔ تو شیطان نے کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آخر علم کی اہمیت کیا ہے۔ شیطان بھی علم کی اہمیت سے واقف ہے، اسی لیے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہزاروں عبادت کرنے والوں پر ایک علم والا بھاری ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک عبادت گزار کے پاس گئے اور اس عبادت گزار کے پاس جانے کے بعد اس سے کہا کہ یہ بوتل ہے، چھوٹی سی بوتل ہاتھ میں لی اور بوتل لے کر کے کہا کہ کیا اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو جو ہے وہ سما سکتا ہے؟ تو اس عابد نے کہا
दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हैं, इतनी छोटी सी बोतल में पूरी दुनिया पूरी कायनात कैसे आ सकती है। और उसके बाद फिर वहां से वो एक इल्म वाले आलिम के पास गए, आलिम रब्बानी के पास, और कहा कि ये बताओ इस बोतल के अंदर क्या अल्लाह तबारक व तआला जो है वो कायनात को समा सकता है। तो फौरन उन्होंने लाहौल पढ़ के कहा तू शैतान मालूम होता है, ये बोतल बहुत बड़ी है, अगर मेरा अल्लाह चाहे तो सुई की नोक पर पूरी कायनात को समाने की ताकत रखता है। ये उसने फिर बताया कि देखो आबिद ने इतनी इबादतें की लेकिन उसका ईमान हमने पल में छीन लिया, लेकिन आलिम जो इल्म वाला था उसने कैसा जवाब दिया। अब आप अंदाजा फरमाएं कि आज जो है इल्म से रोकने के लिए अब हमारे बच्चों को कौन सी चीज है तो उसकी तरफ तवज्जो करना है। मोबाइल गेम्स जो है हमारे बच्चों को इल्म से रोक रहे हैं, यानी कि उस वक्त तो वो शयातीन कोशिश कर रहे थे और हमारे घरों के अंदर अब इतने शयातीन बैठ चुके हैं कि अल्लाह अकबर, मोबाइल गेम्स की वजह से बच्चे ना मदरसा पढ़ पा रहे हैं, ना स्कूल पढ़ पा रहे हैं, ना तालीम हासिल कर पा रहे हैं। बच्चे क्यों गेम ना खेलें? इसलिए कि वो माँ को भी देखते हैं गेम खेलते, वो बाप को भी देखते हैं गेम खेलते। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, हम बड़े नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं। आप में की अक्सर खवातीन माएँ होंगी या जो माएँ नहीं हैं वो मुस्तकबिल में माँ बनने वाली होगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आप उलमा की तरह तकरीरें तो मिंबरों पर जाकर नहीं कर सकती। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आप मुअल्लिमात की तरह मसनद पर बैठ करके दर्स तो नहीं दे सकती, लेकिन आप हमसे बड़ा काम कर सकती हो। बड़ा काम यह है कि आपके पास जो आपके बच्चे हैं आप उनके सीने के अंदर मोहब्बत रसूल पैदा करो, उनके सीने में इश्क रसूल पैदा करो, उनके सीने में असहाब व आल की मोहब्बत पैदा करो, उनके सीने में औलिया अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो। मेरी बहन, सिर्फ किचन रूम संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी बहनों, सिर्फ बर्तन झाड़ू करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। याद रखना अल्लाह ने ये जो औलाद तुम्हें दी है ये अल्लाह की अमानत है। अगर तुमने इनकी सही तरबियत न की मेरी बहनों तो अल्लाह ना करे पता नहीं ये बच्चे और बच्चियां मुसलमान रह जाएंगे या नहीं रह जाएंगे। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, माँ का किरदार इस वक्त तो बहुत अहम है। मैं जानता हूँ मालेगांव में जो बाप की हैसियत रखते हैं वो शायद जिम्मेदारी ज्यादा न निभा सके, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर मर्दों पर जिम्मेदारियां कमाने की है, और अगर वो थक हार करके घर में 8-9 बजे ड्यूटी से फारिग होकर आ भी जाएं तो बेचारे वो बहुत कुछ नहीं कर सकते। आपको अपना किरदार निभाना है एक माँ की तरह और अपने बच्चों की और बच्चियों की सही तरबियत करना है। मैं जानता हूं आप में की अक्सर बहनें बहुत पढ़ी लिखी नहीं होगी, आप में की अक्सर बहनें बहुत दीन नहीं जानती होगी, लेकिन आज मैं आपको एक मशवरा देता हूं, बेहतरीन तरबियत कर सकती हो। जिस आलिम को आप पसंद करती हो, अहले सुन्नत के आलिम को, उस आलिम की 1 घंटे की तकरीर, आधे घंटे की तकरीर रोजाना लगा करके अपने बच्चों के और बच्चियों के साथ बैठकर सब खामोशी से सुनते रहे। अपने घर में एक माहौल बना दे कि एक तकरीर हमें लगाना है और लगा करके सब खामोशी से बैठ करके सुनेंगे। उस वक्त तो कोई इधर उधर नहीं देखेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा। मैं समझता हूं रोजाना 1 घंटे की तकरीर किसी भी सुन्नी आलिम दिन की अगर आप लगा देती हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर के अंदर बच्चों में दीनी माहौल खुद ब खुद पैदा हो जाएगा, इस्लामी माहौल खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको यह तवज्जो देना है कि बच्चे इस्तिंजा कर रहे हैं तो इस्लामी तरीके से करने की नहीं कर रहे हैं, बच्चे खाना खा रहे हैं तो इस्लामी तर्ज पर खा रहे कि नहीं खा रहे हैं। साथ ही साथ जब बच्चे सोए तो उन्हें कुत्ते बिल्ली तोता मैना की कहानी सुनाने की बजाय कुछ वाकयात आप उलमा से जो सुनती हैं आप अपने बच्चों को वाकयात सुनाएं, अपने बच्चों को वो वाकयात बताएं। याद रखना वाकयात बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। और वैसे भी अल्लाह के वलियों का जो जिक्र है, अल्लाह वालों का वो जो जिक्र है वो अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है। मिसाल के तौर पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, बच्चों का जो दिल होता है वो बिल्कुल खाली कोरे कागज की तरह होता है, और बच्चे सबसे ज्यादा एतमाद अगर किसी पे करते हैं बचपने में तो वो अपने माँ बाप पे करते हैं। माँ बाप उनको जो बता दें वो उनके लिए पत्थर की लकीर की तरह होता है, माँ बाप उनको जो कह दे उनके लिए वो सब कुछ होता है। याद रखना उस्ताद की बात सुनेंगे उसमें शक कर सकते हैं, मौलवी साहब की बात सुनेंगे उसमें शक कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप की बात में औलाद कभी शक नहीं करते। उसकी वजह से उनके दिलों के अंदर वो चीज बैठती जाती है। अपने बच्चों के दिल में इस्लाम के बारे में मजबूत अकीदत पैदा करें। देखिए आपको उसकी एक मिसाल बताता हूं, आपको समझ में आएगी बात। अल्लाह अकबर, ओहद की जंग का मौका है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने हजरत सैयदना बिलाल हबशी से कहा, बिलाल जाओ और जा करके मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि सोने वालों सोने का वक्त नहीं, बिस्तरों पे सोने वालों सोने का वक्त नहीं, मुसल्ले पर रोने वालों रोने का वक्त नहीं, चलो जानों की नजरें लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे हैं, आका तुम सबको याद कर रहे हैं। क्या हुआ? अल्लाह अकबर, पहली रात का दूल्हा दुल्हन को छोड़ करके मैदान की तरफ चल पड़ा, मुसल्ले उठा करके सजदा करने वाले रुकू और सुजूद में मसरूफ जल्दी से अपने रुकू सुजूद को मुख्तसर करके बारगाह रिसालत की तरफ चल पड़े। ऐलान करते करते सैयदना बिलाल हबशी एक बेवा औरत के मकान के करीब से गुजरे। जबकि वो खातून सो रही थी, जैसे ही हजरत सैयदना बिलाल की दर्द भरी आवाज उस खातून के कान में पहुंची, उठ करके बैठ गई, सदमे से दो चार हुई, आंखों से आंसू जारी हो गए। या अल्लाह, तेरे देने वाले महबूब ने आज तलब किया है और मेरे पास देने को कुछ भी नहीं, काश मेरे पास भी कोई जवान बेटा होता या मेरे शौहर होते तो मैं उनके बदन पर हथियार सजा करके उनको भी तेरे महबूब के कदमों पे कुर्बान करने के लिए रवाना कर देती। इस तसव्वुर से वो रो रही थी। रोते रोते आवाज बुलंद हुई, आवाज हिचकियों में तब्दील हो गई। नन्ना सा बेटा जो सिर्फ 4-5 साल का था, तवज्जो करना मेरी बहनों, मर्दों से ज्यादा औरतें बच्चों की फितरत जानती है। बताओ 4-5 साल के बच्चों में शऊर क्या होता है, लेकिन 4-5 साल का बच्चा जो पास में पड़ सो रहा था, आंख खुलती है, मां से पूछते अम्मी क्यों रो रही हो? तन्हाइयों का रोना क्या मेरे बाबा की वजह से है? मेरे अब्बू की याद आ गई है? मां ने कहा नहीं, आज तेरे बाबा की याद तो आई है लेकिन बहैसियत शौहर नहीं बल्कि किसी और तसव्वुर से याद आई है। अल्लाह अकबर, बेटे तू मेरा दर्द नहीं समझ सकता, सो जाओ। अल्लाह अल्लाह। जब बच्चे ने ये सुना तो कहते हैं अम्मी ये कैसे हो सकता है कि मां रोती रहे और बेटा सोता रहे? मैं उस वक्त तक नहीं सोऊंगा जब तक कि तुम अपना दर्द और दुख और दुखड़ा ना बताओगी। उस वक्त मां ने उस 4-5 साल के बच्चे को कहा, मेरे बेटे, रसूलुल्लाह का मुनादी बिलाल अभी ऐलान करते हुए गया है। और बिलाल ने कहा हुजूर तलब फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब तो मैं आका को क्या पेश करूं? उस आका की बारगाह में जवान बेटा होता तो पेश करती, तेरे बाबा होते तो पेश कर देती, लेकिन क्या पेश करूं? अल्लाह अकबर। बच्चा सिर्फ 4-5 साल का था लेकिन मां की तरबियत इतनी मजबूत थी कि 4-5 साल के उस बच्चे ने अपनी मां को जवाब दिया, मां अगर तेरे पास जवान बेटा नहीं है तो परेशान होने की जरूरत क्या है? मां मैं तो मौजूद हूं, मुझे अपने नबी के कदमों पे कुर्बान कर दो, मुझे आका के कदमों पे कुर्बान कर दो। आपसे पूछता हूं, हमारे 4-5 साल के बच्चे तो नमाज की भी अहमियत नहीं जानते और वहां जान कुर्बान की जा रही है। पता चला कि मां ने ये तरबियत की थी, मां ने ये बात दिल में बिठाई थी कि हमारा कोई है जो हमें जान से ज्यादा प्यारा है, हमें जान से ज्यादा अजीज है। और नन्हे से बच्चे ने जब कहा, मां ने इंतजार किया सुबह तड़कने का, और जैसे ही सुबह सादिक का उजाला तड़का, नन्हे से बच्चे की उंगली पकड़ी और लेकर के चली गई। जब देखा तो मस्जिद नबवी में मुजाहिदों की सफ लग रही थी। खातून को मस्जिद के दरवाजे पर देखा तो मेरे करीम बंदा परवर बंदा नवाज आका ने फरमाया, बिलाल देखो ये खातून क्यों है, औरतों का यहाँ क्या काम? अल्लाह अकबर। बिलाल गए तो बिलाल ने पूछा, माई यहाँ औरतों का क्या काम? तो उसने कहा, बिलाल इतनी जल्दी भूल गए, आप ही तो ऐलान कर रहे थे कि हुजूर ने बुलाया है। माई बुलाया है मगर मर्दों को औरतों को नहीं। कहा मुझे आका से बात करना है। आका तशरीफ लाए। उस खातून ने कहा, आका आपने हमेशा अता किया है, आपने हमेशा दिया है या रसूल अल्लाह, आज आपने तलब किया है लेकिन आपकी कनीज के पास आज आपकी बारगाह में देने के लिए कुछ नहीं या रसूल अल्लाह। आका ये छोटी सी अमानत लाए हूं, सरकार इसे कबूल कर लीजिए। जवान बेटा होता तो पेश कर देती लेकिन ये बच्चा हुजूर कबूल फरमा लीजिए। मेरे आका ने बच्चे के सर पे हाथ रखा, दुआएं दी, कहा खातून हक व बातिल का मार्का क़यामत तक चलता रहेगा, ले जा बच्चे की परवरिश कर, जब ये जवान होगा इंशाअल्लाह अल्लाह की राह में ये काम आएगा, लेकिन अभी से लेकर के जा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, दुआएं लेकर खातून मुतमईन हो गई और अपने बच्चे को जैसे ही ले जाने लगी तो अल्लाह अल्लाह बच्चे ने मां का हाथ छुड़ा दिया और आका की तरफ मुखातिब होकर के जो उसने जुमले कहे वो काबिल तवज्जो है। वो नन्हा सा बच्चा कहता है, या रसूल अल्लाह मेरी मां तो हर सोते वक्त तो रात को मुझे वाकयात सुनाते हुए कहती है कि हमारे आका का दर वो दर है जहां से कोई खाली नहीं जाता, हमारे करीम का दर वो दर है जहां से कोई खाली नहीं जाता। देखो मां ने कैसा जहन बनाया था आका के हवाले से। वो बच्चा उस दिन कह रहा है कि आका मेरी मां ने मेरी तरबियत ये की है कि आका के दर से कोई खाली नहीं जाता, तो मैं कैसे खाली जा सकता हूं? मेरे करीम न तलवार उठा सकता हूं न तीरें चला सकता हूं, लेकिन आपके नालैन पर आने वाले गुबार को अपने सीने पर लेकर आपके नालैन को तो मैं महफूज रख सकता हूं। अंदाजा फरमाए ये जज्बात कैसे पैदा हुए थे? माओ की तरबियत की वजह से। आज घरों में तरबियत का माहौल नहीं है, सिर्फ खिलाना पिलाना और बच्चों का बर्थडे मनाना और बच्चों को कपड़े देना और बच्चों को मोबाइल देना, यही सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं है। असल प्यार है
उनकी तरबियत अगर तरबियत नहीं करोगी मेरी बहनों तो कब्र के अंदर तड़पती रहोगी, रूह तड़पेगी कि हम अपने बच्चों को बगैर तरबियत के छुड़ाए और आज वो मुसलमान भी ना रह गए। सोचो तो सही, मुर्तद होने वाले उन मुसलमानों के माँ बाप की रूहों पर क्या गुजरती होगी कब्रों में, जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की। लेकिन पछताने से अब क्या हो सकता है, इसलिए आज अल्लाह ने आपको वक्त भी दिया, बच्चे भी दिए, अपने घर में इस्लामी माहौल बनाओ, अपने घर में ईमानी माहौल बनाओ, अपने घर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी तहजीब का माहौल बनाओ, बच्चों की तरबियत करो। और अगर अपने बच्चों को और अच्छे वाकया सिखाना है तो अल्लामा अरशदुल कादरी की किताब लाला जार को पढ़ो, उसको सुनाओ। सच्ची हिकायत अल्लामा अब्दुल नूर बशीर साहब की, अबू नूर बशीर साहब की किताब सच्ची हिकायत का मुताला करो, अपने बच्चों को उसको सुनाओ। इसी तरह बरकात शरीयत का दर्स अपने घर में दो, एक इस्लामी माहौल कायम करो और अपने बच्चों को इस्लाम इस्लाम इस्लाम, ईमान ईमान ईमान, ये चीजें उनके दिलो दिमाग में बिठाओ। बस आखिरी बात देखो, आपको बताऊं हमारे बुजुर्गों ने अपने बच्चों की कैसी तरबियत करके उनको कितना मजबूत कर दिया था, कितना मजबूत कर दिया था। अल्लाह अकबर, कि लोग उनको मौत से डराते थे फिर भी वो लोग इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। खवातीन का हाल ये था कि लोग उनको मार डालते थे, वो मर जाती थी फिर भी इस्लाम नहीं छोड़ती थी। आज बच्चियां मोबाइल के चक्कर में इस्लाम छोड़ रही है, शादी के लालच के चक्कर में इस्लाम छोड़ रही है। और जो लोग इस्लाम छुड़ा रहे हैं वो कितने वफादारी करेंगे उनके साथ, ये अपने तजुर्बात शाहिद है। 2-4 बच्चे पैदा करके छोड़ के भाग देंगे, भाग जाएंगे, ना वो समाज की रहेगी, ना दुनिया की रहेगी, ना आखिरत की रहेगी। आइए मैं आपको बताऊं, जो सबसे पहली शहादत हुई इस्लाम में सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, क्या खवातीन थी वो, उनका क्या मजबूत ईमान था। अल्लाह अकबर, आज तो ईमान का, अकीदे का, आबरू का सौदा कर लें, कोई कर लें, मोबाइल दे के कर लें, शादी की लालच दे के कर लें, चंद रुपये दे के कर लें। मैं कहता हूं ये रुपये पैसे और दुनिया ही सब कुछ हो गई लोगों के लिए। अरे रुपये तो नचनिया भी नाच के कमा लेती है, बंदर नचा करके मदारी भी पैसे कमा लेता है, डुगडुगी बजा करके मदारी भी पैसे, पैसा ही सब कुछ नहीं है। ईमान से बढ़कर कीमती कोई चीज नहीं है। अगर करोड़ों जाने कुर्बान करके भी ईमान बचा लिया जाए तो भी सौदा सस्ता है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नाम याद रखिए, सुमैया पहली खातून इस्लाम की जो शहीद हुई, ये हज़रत अम्मार इब्ने यासिर की माँ है, हज़रत यासिर की बीवी है, साबिकुन अव्वलून में है। और ये जब मुसलमान हुई है, इस्लाम लाने के बाद हाल ये है, घरों घर जा करके तबलीग करती थी। आजकल कुछ लोग ये भी ताना देते हैं कि ये मुबल्लिगात घरों घर क्यों आती है। मैं उनको बता दो जालिमों को, ये मुबल्लिगात जो घरों घर आती है वो सैयदा सुमैया की सुन्नत अदा करने के लिए आती है। और मेरी कौम की बच्चियों से कहता हूँ, मुबल्लिगात से कहता हूँ, शर्म न करना, झिझकना नहीं, घर घर जाकर अल्लाह का दीन पहुंचाओ। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, आपके अंदर खुद दीन नहीं है तो आप लोगों तक क्या दीन पहुंचाएंगे। मशकीजा जिसका खुश्क होगा, वो खुश्क मशकीजे वाला दूसरों को क्या पानी पिला सकता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अंदर से अपने अंदर दीन पैदा करें, दीन की तड़प पैदा करें, इश्क रसूल पैदा करें, जज्बात ईमानी पैदा करें, दीनी गैरत और हमीयत पैदा करें। याद रखें आप औरत जरूर हैं, याद रखें, अच्छी तरह से याद रखें, आप औरत जरूर हैं, लेकिन हर इनकलाबी को जिसने तैयार किया उसको औरत कहते हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी के सर पे हाथ रखकर जिसने कहा था जा और इल्म हासिल कर, तेरी और मेरी मुलाकात क़यामत के दिन होगी, वो कोई मर्द नहीं था, वो एक औरत थी। जिसने गरीब नवाज के सर पे हाथ रख के कहा था जा उस्मान हारूनी जैसा कोई मुर्शिद तलाश कर, तेरी और मेरी मुलाकात क़यामत के दिन होगी, वो कोई मर्द नहीं था, वो माहे नूर उम्मुल वरा फातिमा थी। जिसने मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से कहा था कि लश्कर लेकर के जाओ, मैं समझूंगी कि कोई तू अल्लाह की राह में जिहाद पे गया है और फिर तेरी और मेरी मुलाकात क़यामत के दिन होगी। अल्लाह अकबर, वो कोई मर्द नहीं था, वो एक खातून थी। आपसे पूछना चाहता हूं, ये सब औरतें मेरी बहनों इनकलाबी तो ना बन सकी, लेकिन हर इनकलाबी को तैयार करने वाली औरत है। और ये भी कह दो, जिसने मुंह का लुकमा तीसरी रमजान को अपने बेटे के मुंह में डालकर ये कहा था कि बेटा जब 3 दिन की भूख तुझे तड़पाए तो उस वक्त तो जमीर का सौदा न करना, मेरे लुकमे की लज्जत याद करके फाका कशी कर लेना। और सर पे हाथ रख के कहा था अली अकबर और असगर जैसे बच्चे जब खाको खून में तड़पते हुए नजर आए तब भी जमीर का सौदा न करना, बल्कि मेरा हाथ जो तेरे सर पे है उसकी शफकतों को याद करके अपने बच्चों की शहादत का वो कड़वा घूंट देख लेना। वो कोई मर्द नहीं था, वो भी एक खातून थी जिसे सैयदा फातिमा तो ज़हरा के नाम से याद किया जाता है। हर इनकलाब के पीछे किसी खातून का हाथ है। मेरी बहनों, तुम में भी कई औरतें इनकलाब की दाइया बन सकती है और कई इनकलाबियों को अपने घर से उठा के खड़ा कर सकती है। शर्त यह कि ईमान हो, गैरत हो, इश्क रसूल हो, दीन की तड़प हो। जो खुद सीरियल देखेगी, जो मर्दों से खुद लंबी लंबी फोन पर अजनबी मर्दों से बातें करेगी, उनसे कुछ नहीं होना है। वो खुद गंदी है, गंदों से गंदगी दूर नहीं होती। हम
ہمیشہ گندگی پاکی اور صافی سے دور ہوتی ہے. صاف پانی گندگی کو دور کرتا ہے, پیشاب کبھی گندگی کو دور نہیں کرتا. بدبو کو عطر دور کرتا ہے, بدبو کو بدبو دور نہیں کرتی. بدبو اور بدبو مل جائے تو بدبو اور بڑھ جایا کرتی ہے, بدبو ختم نہیں ہوتی. تو جن کا اندر خود گناہوں سے ناپاک ہو وہ دوسروں کو کیا نور دے گا اسلام کا, تو اسلام کی روشنی کیا دیں گے؟ جن کے اندر خود یقین محکم نہیں ہے وہ دوسروں میں یقین کا کیا چراغ جلائیں گے؟ آؤ آپ کو بتاؤں, عورتیں بھی پیچھے نہیں تھی. اللہ اکبر, سیدہ سمیہ گھر گھر جاتی ہیں, اسلام کا پیغام پہنچاتی ہے, اسلام کی مبلغہ تھی, اسلام کی داعیہ تھی. ابو جہل جیسے گنڈے کو پتا چلا سمیہ دین کی تبلیغ کر رہی ہے, سمیہ کے گھر پہنچا, ان کو پکڑا, ان کے بال پکڑ کر کے انہیں مارا, اور بدبخت نے کہا تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگتا, تو محمد کا دین پھیلاتی ہے. حضرت سمیہ نے کہا جس دن سے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم, جس دن سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے ہر ایک کا خوف میرے دل سے نکل گیا ہے, مخلوق کا خوف میرے دل سے نکل گیا ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا اگر نہ رکے گی تو جان لے لوں گا. کہا یہ جان ہے ہی اسی لیے تاکہ محمد عربی کی نالین پہ قربان ہو جائے. گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں, تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں, مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی تیری کفش پا پر نثارا کروں میں. وہ چل گیا جھلا کر کے, ان کو پکڑا, خوب مارا. مارنے کے بعد ایک اونٹ کے پیر میں سیدہ سمیہ کا ایک پیر باندھا اور دوسرے اونٹ کے پیر میں سیدہ سمیہ کا دوسرا پیر باندھا, اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا. اور جب مخالف سمت میں دوڑایا آپ جانتے ہیں کہ کیفیت اور اس کا حال کیا رہا ہوگا. اور جو شرم کی جگہ ہے وہاں پر تیر چلا کر ظالم نے سیدہ سمیہ کو شہید کر دیا. سیدہ سمیہ کا وجود دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتی رہی لیکن ظالم کے ہاتھ میں کبھی ایمان کا سودا نہیں کیا. یہ اسلام کی بیٹیاں تھی, اسلام کی خواتین تھی. اس سنت کو پھر زندہ کرنا پڑے گا. آج کوئی آپ کے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی اس کے بعد ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ موبائل پہ بک جا رہا ہے, شادی کی لالچوں پر بک جا رہا ہے, گھروں کے مکانات اور دکان کی چمک دمک پہ بک جا رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم ایسا ایمان جو موبائل اور رشتوں پر بک جائے وہ ایمان لوگوں کو جنت میں کیا لے جا سکتا ہے؟ ایمان تو وہ ہے پہاڑ متزلزل ہو جائے لیکن ایمان متزلزل نہ ہو سکے. یہ شان ہوتی ہے ایمان کی. امید ہے یہی مزاج آپ سب لے کر کے چلیں گے. اللہ کرے ہم سب سے اللہ وہ کام لے لے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کا جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے اور ہماری قوم کے ایمان کا